اللہ. مفتی صاحب, ہندوستانی میڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے. بہتر ہے, جزاکم اللہ. مفتی صاحب, مختصر طور پہ آپ اپنا تعارف پیش فرما دیں, بہتر ہوگا. میں مدرس ہوں دارالعلوم دیوبند میں, اور اس وقت ایک یعنی دارالعلوم کی نسبت کے بغیر ایک آزاد حیثیت سے جو بھی گفتگو ہوگی وہ ہوگی. حضرت, آج کا جو یہ پروگرام ہے وہ عظیم الشان اجلاس عام, اور اس کا عنوان ہے تعلیمی بیداری و تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. تو حضرت, یہ تعلیمی بیداری مطلب یہ کہ تعلیم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے, اور کیا مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے؟ حضرت تھوڑا اس سلسلے میں آپ وضاحت فرما دیں. ہاں, یہ اس پروگرام کا مرکزی عنوان ہے اور اس پر بہت زیادہ پیش رفت کی ضرورت ہے. پچھلے چند سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے مسلم سماج میں بھی تعلیم اور ایجوکیشن کے حوالے سے بیداری آئی ہے, لیکن پھر بھی جو ایجوکیشن کا گراف جس حد تک ہونا چاہیے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. خاص کر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے بغیر کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی. اگر ہمیں اس ملک میں اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے, اپنے تشخص کے ساتھ اور اپنی پہچان کے ساتھ رہنا ہے, تو تعلیم جس کی بہت زیادہ اہمیت خود ہمارے دین اور مذہب کے اعتبار سے ہے, اس پر توجہ دینی پڑے گی. اور جگہ جگہ جیسے یہ مکاتب قائم ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی بھی تعلیم پر توجہ کی ضرورت ہے. ایسی تعلیم جس سے ان کے اندر انسانیت اور مانوتا کا جذبہ اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو, اور وہ دیش کے اچھے ناگرک بن کر اپنے سماج کے لیے اور دیش کے وکاس کے لیے اپنی قربانیاں اور اپنے کردار کو ادا کر سکیں. حضرت, ایک سوال یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک ایسے عظیم ادارے سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے استاذ بھی ہیں, معلم بھی ہیں, جن کے فضلہ ساری دنیا میں ملی سماجی اور سیاسی خدمات انجام دے رہے ہیں, اور جس کا فیض پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے, تو یہ مدارس یہ اسلام کے اندر کتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے؟ یہ دیکھیے, یہ جو مدارس جب قائم ہوئے تھے, آپ حضرات کے علم میں ہے 1857 کا جو انقلاب تھا جسے انگریزوں نے غدر کا نام دیا تھا, وہ اس لیے تھا تاکہ ہندوستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے دین, مذہب اور اپنی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ رہ سکیں. لیکن بظاہر اس میں ناکامی ہو گئی, تو اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ کم از کم لوگوں کے دین کو اور ان کے عقیدے کو بچانے کے لیے اور انہیں تعلیم سے جوڑے رکھنے کے لیے اس طرح کے مدارس قائم کیے جائیں جو خاص کر اس وقت کی حکومت کی گرفت سے اور دخل اندازی سے پاک ہوں. اس لیے 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند قائم ہوا, اور پھر اسی کے نہج پر جگہ جگہ نگر نگر اور چپے چپے میں مدارس کا جال بچھایا گیا. ان مدارس نے سماج کے اس طبقے کی بھی بڑی خدمت کی ہے جن کے لیے تعلیم تک رسائی بہت ہی دشوار اور مشکل تھی. آج کل جس طرح تعلیم کا کمرشلائزیشن ہو گیا ہے اور ایک طرح سے اس کو تجارت بنا دیا گیا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ مدارس میں ایسے غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی آتے ہیں, اور ان کو بھی ہر طرح کی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں جس سے وہ پڑھے لکھے اور اچھے انسان بن سکتے ہیں. تو اس لیے مدارس کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ ہے. یہ اپنے دین اور مذہب کی بنیادی طور سے تعلیم دیتے ہیں, لیکن تعلیم کوئی بھی ہو اس سے دل اور دماغ میں روشنی آتی ہے, ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے, آدمی اچھا شہری بن کر زندگی گزارنے کا حوصلہ اور اس طرح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اس لیے مدارس کے کردار کو
सराहना भी चाहिए। और ख़ास कर इस वक्त इन हालात में भी जब तालीम बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है, तो उसमें समाज के वो तबके जो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनके लिए भी मदारिस ये उम्मीद की एक किरण है। और मदारिस में जो तालीम दी जाती है, आप हज़रात को बहुत अच्छी तरह मालूम है, बिल्कुल सब के लिए एक खुली किताब की तरह है। और यहाँ अखलाक सिखलाए जाते हैं, अच्छी बातें बतलाई जाती हैं, इंसानियत सिखलाई जाती है। और मदारिस ने मुल्क की आज़ादी में भी अच्छा किरदार अदा किया है। इस मुल्क को अच्छे अच्छे लीडर भी दिए, अच्छे इंसान अता किए। और मदारिस के फ़ुज़ला कभी भी प्रशासन पर या ये कि इस मुल्क की जो व्यवस्था है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर बोझ नहीं बनते। और ये थोड़े वसाइल के साथ भी, थोड़े सोर्सेस के साथ भी जगह जगह पहुंचकर चिराग से चिराग जलाने का काम करते हैं। और उन लोगों तक भी पहुंचकर इल्म की रोशनी को पहुंचाते हैं जहां तक लोग पहुंचना नहीं चाहते। तो बहरहाल मदारिस का एक किरदार था और है और आइंदा भी रहेगा। कभी भी इसके किरदार का न तो इनकार किया जा सकता है और न इसकी अहमियत को कम किया जा सकता है। हज़रत ये आपसे आखिरी सवाल है कि जब मदारिस जिस तरह से जिस्म के अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, उसी हिसाब से मदारिस ये दीन के किले हैं और ईमान के लिए मदारिस का ज़िंदा रहना और बाकी रहना बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। तो फिर भी हम समाज में देखते हैं कि जो मुस्लिम तबका के लोग हैं वो ज़्यादातर इस मदारिस की तरफ अपने बच्चों को देना नहीं चाहते हैं, और जो गैर मुस्लिम तबका के लोग हैं वो उस पर उंगलियां उठाते हैं और कहते हैं कि इस्लाम और मदारिस ये दहशतगर्दी का अड्डा है। इस सिलसिले में हज़रत थोड़ी सी आप वज़ाहत में चाहता हूँ आपसे। देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो गलत फहमी की बिना पर भी होती हैं। ये प्रोपेगंडे का दौर है और इस तरह मदरसों के ख़िलाफ़ ख़ास मकासद के तहत प्रोपेगंडा किया गया। और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारा हिंदुस्तानी मीडिया इसमें रहा हो, ये पूरा वेस्ट का जो मीडिया है वहीं से पूरी एक बात चली है। और उन्होंने पूरी एक प्लानिंग के साथ मदारिस का एक गलत रुख पेश करने की कोशिश की है। हालांकि इसका बहुत आसान हल है। यहाँ किसी भी मदरसे का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है, किसी भी वक्त जाकर अपनी खुली आँखों से देख सकते हैं कि मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। तो बहरहाल इन प्रोपेगंडे से मुतासिर नहीं होना चाहिए। और मुसलमानों को ख़ास कर मुसलमानों के लिए असल जो चीज़ है वो तालीम है। और मुसलमानों के लिए दोनों मसले हैं, एक तो तालीम भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि उन्हें इस मुल्क में अपने मज़हब के साथ, अपनी नमाज़ों के साथ, अपनी तहज़ीब के साथ, अपने कुरान मुक़द्दस के साथ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत के साथ ज़िंदा रहना है। इसलिए मुसलमान तालीम पर ख़ास तौर से तवज्जो दें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब के सब जो आम मारूफ मदरसे हैं उन्हीं मदरसों में आएँ। अगर उन मदरसों में हमारे मुस्लिम बच्चे नहीं आते, लेकिन उसके अलावा भी उनके पास तालीम का कोई निज़ाम है, मसलन मकामी सतह पर मुस्लिम मैनेजमेंट की तरफ से स्कूल का निज़ाम है या ऐसे कॉलेजेस बनाए जाते हैं जहाँ असरी तालीम के साथ साथ उनको मज़हब की भी अहमियत बतलाई जाती है, जिससे उनके अंदर दीन से बगावत नहीं पैदा होती। तो ये चीज़ें भी हैं और इन चीज़ों का भी फ़ायदा है। तो ज़रूरत इस बात की भी है कि मदरसे के जो ज़िम्मेदारान हैं वो भी इन ज़रूरतों को समझें, मुसलमानों में दीनी शऊर पैदा करें। मुसलमानों में जब दीन की अहमियत आएगी तभी वो ये समझेंगे कि मदारिस हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। और उसके साथ साथ इसकी भी ज़रूरत है कि हालात के एतबार से मदरसे उसी के मुताबिक अपना निज़ाम भी बनाएं, अपना निसाब भी बनाएं, जिसमें बच्चों के लिए दिलचस्पी भी हो और वो ऐसे अच्छे इंसान भी बने, अच्छे मुसलमान भी बने और वो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में भी दूसरों पर इन्हिसार न करें, अपने पैर पर खड़े होने की ताकत रखें। इस तरह का निज़ाम बने और दीन की अहमियत उनके दिले में हो तो इंशाअल्लाह वो मदारिस से जुड़ेंगे। बहरहाल मदारिस से ऐसा नहीं है, हमारे मुस्लिम समाज को अभी भी बहुत ताल्लुक़ है, अभी भी बहुत मोहब्बत है। ये जो बड़े बड़े मदरसे चलते हैं, दारुल देवबंद जिसका बजट जो है वो 40 करोड़ से ज़्यादा है, ये सब मदरसे इन्हीं मुस्लिम आवाम के पैसों से चलते हैं। तो और ये आवाम माशाअल्लाह इन मदरसों को इन्होंने गोद ले रखा है, ये अपनी गाढ़ी कमाई से उनकी खिदमत करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आवाम का रुझान मदारिस की तरफ नहीं है, तो ये उन्हीं की मोहब्बत से और उन्हीं की कमाई से ये सारा निज़ाम चल रहा है और उनके दिलों में भी दीन की आज़मत है। लेकिन बहरहाल इसको और ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है ताकि वो तालीम की अहमियत को समझें और दीन के साथ साथ
दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश करें। शुक्रिया आपका कि आपने बातचीत के लिए थोड़ा सा वक्त दिया। जज़ाकुमुल्लाह। कामयाब हों